अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। मोदी ने वोट चोरी करके इख्तिदार हासिल किया। वायनाड में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सबूत के तौर पर बहुत जल्द हाइड्रोजन बम लाएंगे जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। अब हमें देश में ही रहकर काम करने को तरजीह देनी होगी। H1B वीजा के अमेरिकी फैसले पर नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल। गुजरात में किया अवामी जलसे से खिताब। H1B वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ाने के ट्रंप के फैसले पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन की तशवीश। कहा, हुकूमत को इस मामले में मदाखलत करनी होगी। ट्रंप के नए फैसले पर कंपनियों का हंगामी रद्द-ए-अमल। H1B वीजा होल्डर्स को वापस बुलाने की हिदायत। और दिवाली और दीगर त्योहारों पर तोहफे देना बंद करें। वजारत मालियात ने सरकारी महकमों को दी हिदायत। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर हाइड्रोजन बम का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान की सियासत में जबरदस्त हलचल मचाने का अज़्म जाहिर किया है। उन्होंने आज केरला के वायनाड में मीडिया से बातचीत करते हुए वोट चोरी का संगीन इल्जाम बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आयद किया। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो वोट चोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी मीडिया एहलकारों के सामने अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक हाइड्रोजन बम सबूत है जो पूरी हकीकत को सामने लाएगा और साबित करेगा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी करके इख्तिदार हासिल किया। हम एक हाइड्रोजन बम लाने जा रहे हैं जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। When I was being attacked, brutally attacked, the people of Wayanad protected it. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോടത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഞാൻ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഒപ്പം നിന്നത് വയനാടിലെ ജനങ്ങളാണ്. And that is what a family member does. അതാണ് ഒരു കുടുംബാംഗം ചെയ്യുന്നത്. So you treated me in exactly the same way my sister or my mother would treat me. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് സ്നേഹിച്ചത്, എന്നോട് പെരുമാറിയത് എന്റെ സഹോദരിയും എന്റെ അമ്മയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ നിലയിലാണ്. And by your behavior you created a bond with me. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പെരുമാറിയത് കൊണ്ട്, എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായി. So I have no choice but to treat you as family members. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കുടുംബാംഗം പോലെ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുക മാത്രമേ എനിക്ക് മാർഗമുള്ളൂ. Because you could have very well said to me that no, we are not going to protect this land. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു, ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു. But you didn't. You said this man is being unfairly treated and we are going to protect him. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇല്ല, ഈ മനുഷ്യനെ അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അന്യായമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. And when you recognize family, you recognize them in difficult times and bad times. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അവരുടെ ഏറ്റവും കഷ്ടതയുള്ള സമയത്ത്, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. So this is something that I will never forget my whole life. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ബന്ധം. Priyanka ji said about Oman Chandy ji, in whose name we are inaugurating this hall. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേരിലാണ്. That he was a humble person. പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വളരെ വിനയാന്വിതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Chief Minister of Kerala was a humble person. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വിനയാന്വിതനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. And you might meet other leaders from all levels who get a little bit of power and they become arrogant. गुजरात के भावनगर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हमें मुल्क से बाहर जाने के अपने ख्याल को तर्क करना होगा और
देश में ही रहकर तरक्की करनी होगी। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से H-1B वीजे की फीस में इजाफे के पस मंजर में बात कर रहे थे। लगाती तो आज दुनिया हमारे जहाज इस्तेमाल कर रही होती, हमें लाखों करोड़ रुपए शिपिंग सर्विसेज के रूप में मिल रहे होते और हमारे बच जाते वो तो अलग। साथियों, भारत को अगर 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है, तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से, अलग अलग प्रोसेसेस से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस अब व्यापार कारोबार को और सरल करने वाली है। हाल में ही जैसे हमारे मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी ने बताया, मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में हमने ऐसे अनेक पुराने कानूनों को बदला है जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। हमने मैरीटाइम सेक्टर में अनेक रिफॉर्म करने का सिलसिला शुरू किया है। हमारी सरकार ने 5 मैरीटाइम कानूनों को नए अवतार में देश के सामने रखा है। इन कानूनों से और इन कानूनों के आने से शिपिंग सेक्टर में, पोर्ट गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथियों, भारत सदियों से बड़े बड़े जहाज बनाने में एक्सपर्ट रहा है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स देश के इस भूले हुए गौरव को फिर वापस लाने में मदद करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजे की फीस में $1 लाख तक इजाफा करने पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने इस फैसले को तशवीशनाक और हिंदुस्तानी बरादरी के लिए एक बड़े बोझ से ताबीर किया है। मनीष तिवारी के अलावा दीगर माहिरीन का भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अमेरिका की तरफ से ये जो घोषणा हुई है, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के कहने के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया था। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर हैं पाकिस्तान के, उनकी बड़ी आवभगत सफेद भवन में की गई थी, व्हाइट हाउस में की गई थी। उसके बाद 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया और ये जो H-1B वीजा का कदम उठाया गया है, ये एक संयोजित तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। सरकार को इसको बहुत संवेदनशीलता से और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी के दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार मोदी जी की तारीफ करके
भारत से शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और भारत से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाला नरेंद्र मोदी जी का कैसे दोस्त हो सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा। एक ट्वीट नरेंद्र मोदी को वो कर देते हैं तो माय फ्रेंड कहने लगते हैं, नमस्ते ट्रंप करने लगते हैं, हाउडी ट्रंप करने लगते हैं। और अमेरिका का लगातार इन दिनों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण है। H1B वीजा पर फीस बढ़ाई, इससे पहले चबहार पोर्ट पर उन्होंने अपनी निगरानी बढ़ा दी कि चबहार पोर्ट से भारत का व्यापार होता है। चबहार पोर्ट भारत के पास में है, जहां से वो पाकिस्तान को बगैर टच किए हुए मिडिल ईस्ट में अपना व्यापार करता है, अफगानिस्तान के साथ और रशिया के साथ अपना व्यापार करता है। उस पर आपने प्रतिबंध लगा दिया। उससे पहले आपने 50% का टैरिफ हमारे व्यापारियों पर लगा दिया। और उसके बाद भारत को नशीले पदार्थों का सप्लायर देश बना दिया। भारत जैसे 140 करोड़ मुल्क पर इस तरीके की तोहमत लगाना नरेंद्र मोदी जी की सरकार के गाल पर तमाचे की तरीके से है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी इसका कड़ा प्रतिवाद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हाँ, देश तो कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, ये तय है। अमेरिका लगातार भारत के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है और नरेंद्र मोदी लगातार उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। ट्रंप के नए ऐलान के बाद H1B वीजा होल्डर्स में अफरा तफरी फैल गई। खासतौर पर बड़ी टेक कंपनियां जैसे मेटा और माइक्रोसॉफ्ट अपने मुलाजिमीन को हंगामी हिदायत जारी कर रही हैं ताकि किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से बचा जा सके। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने H1B वीजा होल्डर से कहा है कि वो आइंदा 14 दिन तक अमेरिका से बाहर सफर न करें। कंपनियों के मुताबिक इस दौरान किसी भी बैरून मुल्क सफर से वापसी में दुश्वारी का इम्कान हो सकता है, इसलिए मुलाजिमीन को ये पाबंदी लाजमी समझनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मुलाजिमीन को ईमेल के जरिए हिदायत दी है, जो पहले ही अमेरिका से बाहर हैं, कि वो 24 घंटे के अंदर वापस लौट आएं। H1B वीजा होल्डर के लिए ये गैर मामूली और हंगामी अपील है, जिसे कंपनियों ने अमेरिकी हुकूमत के नए फैसले के फौरी निफाज से पहले किया है। मरकजी हुकूमत में वजारत मालियात के माशी मुशीर डॉक्टर समंतर पॉल के एक मशवरे ने मुलाजमीन को हैरत में डाल दिया। उन्होंने मशवरा दिया कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को दिवाली और दीगर त्योहारों में जो तोहफे दिए जाते हैं, इस रस्म पर रोक लगाई जाए। माशी मुशीर की तरफ से 17 सितंबर को इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस DPE को हिदायत दी गई है। डॉक्टर समंतर पॉल का कहना है कि तोहफे देने से सरकारी खर्च बढ़ता है और मईशत में अवामी वसाइल का मुनसिफाना इस्तेमाल हो, इसके लिए ये इक़दाम उठाना ज़रूरी है। हिंद तौस आबी मुआहदे की गूंज एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में सुनी जा रही है। हिंद तौस मुआहदे पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सफ़ीरों के माबैन ज़बरदस्त बहस और तल्ख कलामी देखने में आई। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ हिंद तौस आबी मुआहदे को ख़त्म कर दिया है। My delegation welcomes the Special Rapporteur and thanks him for presenting his report. We concur that difficulties in upholding the right to drinking water are not the result of technical or resource constraints, but a consequence of inequalities within and across countries. Yet another factor is the instrumentalization of water flows in transboundary rivers for geopolitical motives. In our region, the decision by an upper riparian state to obstruct flows of water in contravention of the Indus Waters Treaty of 1960 threatens to have dire consequences for people living downstream in Pakistan. In addition to their rights to water and sanitation, the rights of people in Pakistan to food and environment, among others, are also directly threatened. At a time when climate change-induced floods are wreaking havoc, agreements that ensure predictable water flows and exchange of hydrological data are ever more important. States cannot abdicate their responsibility under customary international norms of transboundary water use, such as the duty to coordinate, avoid significant harm, and peacefully settle differences. Mr. Special Rapporteur, Pakistan sees merit in your call for regional cooperation for climate change adaptation. It is equally important to emphasize the need for faithful implementation of transboundary water cooperation agreements. International cooperation should continue to govern the management of shared water resources. We would welcome your insights on human rights responses to ensure these guardrails are not breached. We are compelled to express our deep concern over the persistent and deliberate attempts by a particular delegation to politicize the proceedings of this Council.
Such actions not only undermine the integrity of this platform, but also seek to deflect attention from other core issues. The Indus Water Treaty, signed in 1960, was concluded in a spirit of goodwill and friendship, but the world of 1960 is not the world of today. The grim reality of relentless state-sponsored cross-border terrorism emanating from Pakistan fundamentally erodes the environment required for honoring treaty obligations. Mr. Vice President, the escalating impact of climate change, advancements in technology, and the growing imperative for sustainable clean energy compel a serious re-evaluation of the treaty's relevance and applicability in today's context. Mr. Vice President, a party that consistently and willfully violates the core tenets of a treaty should not accuse others of non-compliance. The Council must not allow itself to be used as a platform for diversion and distortion. It must instead recognize that lasting cooperation is rooted in trust, not terror. जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो कत्ल के मुलजिम हैं और नाकाबिल भरोसा हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह, जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज थे, बजाता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग, एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है, जेल में रहा है और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सिंह, उनकी हत्या हुई, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात में आरएसएस से मुंसलिक एबीवीपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसने सदर ओहदे समेत 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। जुमे के रोज इस इंतखाब का नतीजा बरामद हुआ, जिसमें कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI ने महज 1 नायब सदर ओहदे पर कामयाबी हासिल की। इस तरह देखा जाए तो NSUI को गुज़िश्ता तलबा यूनियन इंतखाबात के मुकाबले 1 ओहदे का नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता बार NSUI ने सदारती ओहदे पर भी कब्जा किया था। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने हफ्ते के रोज दिल्ली असेंबली इंतखाबात में वोट चोरी के घोटाले का इल्जाम आयद किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ को दबा दिया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इंतखाबात के दौरान वोट काटने के मुताल्लिक़ 6166 फर्जी दरख्वास्तें दायर की गईं और जिन लोगों के नाम ये दरख्वास्तें पेश की गईं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्होंने कभी ऐसी दरख्वास्तें पेश नहीं की। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत भेजी थी और बार बार इसकी पैरवी भी की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने से इनकार कर दिया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वही मालूमात इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई, मगर किसी FIR या गिरफ्तारी की तफसील फ्राहम नहीं की गई। सौरभ भारद्वाज ने इल्ज़ाम लगाया कि कमीशन असल वोट चोरों तक पहुंचने में रुकावट डाल रहा है और इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी ने वोट चोरी करके इख्तिदार हासिल किया, वायनाड में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा, हम सबूत के तौर पर बहुत जल्द हाइड्रोजन बम लाएंगे जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। अब हमें देश में ही रहकर काम करने को तरजीह देनी होगी। H-1B वीजा के अमेरिकी फैसले पर नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल। गुजरात में किया अवामी जलसे से खिताब। H-1B वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ाने के ट्रंप के फैसले पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन की तशवीश। कहा, हुकूमत को इस मामले में मदाखलत करनी होगी। ट्रंप के नए फैसले पर कंपनियों का हंगामी रद्द-ए-अमल। H-1B वीजा होल्डर्स को वापस बुलाने की हिदायत। और दिवाली और दीगर त्योहारों पर तोहफे देना बंद करें। वजारत मालियात ने सरकारी महकमों को दी हिदायत। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।